Good afternoon, dear students. So let us try to start with a new topic of the vectors, that is multiplication of a vector by a scalar. Multiplication of a vector by a scalar. So suppose we are having a vector a bar. If it is by multiplied by any number, what happens beta? It increases by that many number of times. Like say for example, if I'm having a bar, if a bar is being multiplied with, like say for example 4, so this will become for me 4 times of a bar. If there is a vector c bar, if it is multiplied by minus 5, that means this will become for me minus of c bar. If there is a vector d bar is multiplied by your half, then that means that will become for me d by 2. Got the condition? Okay, now that means if a vector is multiplied by any scalar, it will be increasing that many number of your times. That will be increasing for me that many number of your times per definition. That was about your multiplication of your vector is being concerned. So whenever I'm talking about the multiplication of your vector per definition, like say suppose I'm writing here right now. Suppose a bar is a vector. A bar is a vector which is multiplied by a number which is being multiplied by a number. मान के चलो number lambda से represent करा, तो उसका magnitude क्या हो जाएगा बेटा? What will be the magnitude? The magnitude of the resulting vector. The magnitude of your resulting vector is lambda into mod of your a bar. And the direction will be along what? A bar. The direction will be along a bar. यानी a bar का जो भी direction होगा, that will be your direction. If lambda is a positive, it will be positive. If it is opposite, then it will be your negative part. So depending upon the number part affiliation. Like say for example, if I give you a small example right now, see here. Say for example, a bar is equals to 4 units. A bar is equals to 4 units due east. Then what is the vector? What is the vector? Number A, 2 times of your a bar is equals to how much? Number B, minus 0.5 times of your a bar is equals to how much? Can anyone give me the answer, beta? 2 times of a bar means 2 into a bar is how much for me? 4 units. 4 units due east. That means that will become for me how much? 8 units due east. So that will be your answer. If this is right now 0.5, minus 0.5 will be equal to how much for me? 0.5 into your a bar. A bar is nothing but how much for me? 4 units due. I am removing minus sign. इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? वेस्ट. तो ये हो जाएगा वेस्ट, यानी ये बन जाएगा मेरे पास 2 यूनिट्स ड्यू वेस्ट. ठीक है ना बेटा? ये कौन से डायरेक्शन में था? ईस्ट में था. अब माइनस ये लिया, मतलब ईस्ट का ऑपोजिट, यानी 2 यूनिट्स ड्यू योर वेस्ट डायरेक्शन. आंसर विल बी द आंसर फॉर दैट वन. बस समझ में आया अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर. इफ एनी वेक्टर इज बीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर, दैट विल बी इंक्रीजिंग दैट मेनी नंबर ऑफ योर टाइम्स. ठीक है ना? क्लियर है सभी को पॉइंट? यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ योर वेक्टर्स. सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसा करते हैं हम लोग को? एडिशन के लिए तो रिलेशन आ गया. एडिशन के लिए when two vectors are being added, you are doing it by what laws बेटा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड आल्सो बाय योर ट्रायंगल लॉ. उसके रिजल्ट्स क्या थे? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू cos थीटा. और डायरेक्शन निकालने के लिए फार्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय योर a प्लस b इनटू योर cos थीटा. Now if I am talking about your subtraction of your vectors by definition, that means it is simply I can say that addition of your negative vector है कि नहीं? Subtraction of vector is nothing but what? Addition of your negative vector part of relation. मान के चलो मेरे पास 2 वेक्टर्स है.
A bar and B bar are, say for example, two vectors. Say for example, let A bar and B bar be the two vectors. Be the two vectors. Their subtraction is how much beta? Their subtraction कैसे लिख रहे हैं हम लोग? बोलो कोई. Their subtraction will be C bar is equal to कैसे लिखेंगे हम लोग? A bar minus B bar. या इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ? This is also equal to A bar plus addition of what? Negative vector minus of B bar. लिख सकता हूँ कि नहीं? So this is your relation. ठीक है ना सभी को? C bar is equal to A bar plus B bar means that is nothing but equal to what? A bar plus minus of your B bar part of relation. What do you mean by that one? Subtraction of A bar and B bar is nothing but what? Addition of your A bar and as well as of your B bar. So I can write one point here right now. Subtraction between A bar and B bar is nothing but the addition of vectors A bar and minus B bar, isn't it? Let us try to do with the triangle law. अगर हम लोग इसको triangle law से लिख रहे हैं basically, we'll try to understand this with the triangle law and also the parallelogram law of vector addition. Now see here, I've got two vectors beta. What are the two vectors? This is the vector A bar minus this is the vector B bar. So this will be equal to, I'll keep the A vector as it is, that is nothing but of your vector A bar as it is. Now B bar ka negative, I am taking the tail of this one right now. So ये हो गया इसका B bar, ये हो गया इसका B bar. इसका अगर नेगेटिव ड्रॉ करना है तो इसका क्या नेगेटिव कहां पर आ जाएगा? इसके पीछे आ जाएगा इस तरह से. सो B का अगर मुझे माइनस लिखना है तो ये हो गया माइनस ऑफ B बार. आया सभी को? हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज अटैच्ड टू द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से. The resultant will be given by what? Closing side of the triangle taken in the opposite order. तो ये हो गया इसका resultant, that is nothing but of your C bar. तो ये resultant बनाएगा अल्फा और एंगल कहां पर आएगा बताओगे? इसको अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो ये हो गया इसका एंगल थीटा. बना सभी को? Yes sir. सो A बार एंड B बार के बीच में एंगल कितनी है बेटा? थीटा. ठीक है ना? Yes sir. ये ट्रायंगल लॉ से. अगर मुझे आप बोलेगे सर आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी समझा दें तो क्या होगा? देखो, इफ आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द डायग्राम विथ योर पैरेललोग्राम लॉ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. समझ में नहीं आ रहा तो एक से दो बार पूछ के करवा लो, बट प्लीज डोंट ट्राई टू सिट मम. तो मान के चलो दिस इज ए वेक्टर ए बार माइनस करना था अपने को बी बार. ये था मेरे पास टू वेक्टर्स. अब इसका हम लोग को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से डायग्राम लिखना है. पैरेललोग्राम में कंडीशन क्या है बता सकता है कोई? टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर is attached to the tail of the second vector. यानी या टेल एंड टेल मेथड. ये हो गया बी बार. इन दोनों के बीच में जो एंगल थे थीटा. अब मुझे चाहिए क्या था? ए बार एंड माइनस बी बार. तो इसको ऑपोजिट लेना है मुझे. बी का ऑपोजिट ले रहा हूं मैं यहाँ पर. तो ये हो गया यहाँ पर माइनस ऑफ बी बार. तो ये हो गया ए बार और ये हो गया मेरे पास बी बार. ए बार एंड एज वेल एज ऑफ योर माइनस ऑफ बी बार. इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा बता सकता है कोई मुझे? The resultant will be the parallelogram diagonal. So ये हो जाएगा मेरा resultant. That is nothing but of your C bar. That is nothing but about your C bar part of relation. तो इसको अगर मैं इसको extend कर रहा हूँ तो इसका एक parallel vector यहाँ पर आ जाएगा और इसको closing side यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा. यानी ये भी माइनस बी बार होगा और ये भी मेरे पास ए बार होगा. चाहे आप ऐसा ले लो या आप ऐसा ले लो. इसमें भी क्या दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं? नहीं बन रहे. देखो, two triangles taken in the two sides of the triangle taken in the same order. Third vector is been in the opposite direction. That will give me the resultant. Parallelogram क्या है? Combination of your two triangle lossy है ना बेटा. तो C bar क्या बन गया मेरे पास यहाँ पर? C bar is nothing but equal to your A bar minus of your B bar. ठीक है ना? सभी को क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Sir. Now can anyone tell me what is the angle between A bar and B bar? Angle between A bar and minus B bar के बीच में एंगल बताओ जल्दी डायग्राम देखो A बार कहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है और B बार माइनस B बार डाउन में है तो ये एंगल कितनी हो जाएगी टोटल एंगल 180 होगी ना बेटा स्ट्रेट लाइन के लिए तो 180 तो ये बन गई मेरे पास कितना 180 माइनस ऑफ योर थीटा ठीक है ना तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो मैं मैग्नीट्यूड विल बी कैसा बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ योर मॉड सी बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये हो गया ए बार प्लस ये हो गया माइनस ऑफ बी बार प्लस हो गया 2 इंटू योर ए इंटू योर बी बार निकाल रहा हूँ बेसिकली राइट नाउ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार भी निकाल रहा हूँ बेसिकली सो दिस विल बी इक्वल टू योर माइनस ऑफ योर बी बार इंटू कॉस ऑफ योर 180 माइनस ऑफ योर थीटा ठीक है ना तो ये बना कितना मेरे को बता सकता है अंडर रूट ऑफ योर a square plus b square minus this one will become for me 2ab into your cos theta ठीक है क्लियर है सभी को सभी का क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. So angle between a bar and b bar कितना है मेरे पास a bar and minus b bar is 180 minus of your theta अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बेसिकली मेरे पास a bar स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो ये हो जाएगा प्लस दिस इज नथिंग बट ऑफ योर इसका भी मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ बेसिकली इन टर्म्स ऑफ योर मैग्नीट्यूड ही ले लो तो इसको भी हम लोग यहाँ पर से अगर मैं इसका प्लस साइन निकाल दूँ तो cos 180 माइनस थीटा कितना होगा बेटा माइनस cos थीटा तो ये हो गया मेरे पास मॉड ऑफ योर c बार तो ये हो गया इसका आंसर a बार प्लस mod of this one is under root of your a square plus b square minus of your 2ab into your cos theta is your basic condition अगर डायरेक्शन निकालना है तो कोई बता सकता है if c bar makes an angle if c bar makes an angle alpha with a bar तो tan alpha is equals to see the diagram डायग्राम में आपको देखो कहां पर होगा बेसिकली ये बार और सी बार के बीच में एंगल ये वाली एंगल जो है ना दैट विल बी इक्वल टू अल्फा रिजल्टेंट तो हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू b into sin 180 minus theta divided by your a plus जो cos 180 minus theta ठीक है ना so that is equals how much for me b into sin 180 minus theta is nothing but sin theta divided by minus b cos theta cos 180 minus theta is nothing but minus cos theta minus of your cos theta यानी बन जाएगा मेरे पास b into sin theta divided by a minus b cos theta ये भी है b into your cos theta so this is your answer tan alpha is equals to कितना बन रहा b sin theta divided by your a minus b into your cos theta अगर अल्फा निकालना है तो इसमें से कैसे निकालोगे अल्फा इज इक्वल्स टू योर ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ योर b into your sin theta divided by a minus b into your cos theta so ये हो गया इसका आंसर ठीक है ना अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिखना है वेरी इंपॉर्टेंट अब ये जो थीटा है मुझे कोई बता सकता है थीटा क्या है बेटा थीटा इज द एंगल बिटवीन देखो थीटा इज bar and b bar. a bar and b bar A bar and B bar. minus b bar a bar and b bar के बीच में का जो एंगल है वो थीटा है a bar and minus b bar के बीच में जो एंगल है 180 minus 180 minus theta. फॉर्मूले में थीटा आया थीटा इज नथिंग बट व्हाट राइट नाउ हियर थीटा इज एंगल बिटवीन a bar And B bar. but not between what a bar and minus minus b bar होगा क्लियर है सभी को बात समझ में आई clear is Yes, sir. yes sir एक्शन में फॉर्मूला क्या है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा और डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a minus b into cos थीटा डायग्राम देख लो एक बार थीटा इज द एंगल बिटवीन a bar and b bar
alpha is the angle between the C bar and A bar. C bar is nothing but what? Resultant. And A bar is nothing but first vector. इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है that is nothing but of your alpha. ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, then we'll try to go for the next part. चलो मान के चलो A bar is equals to 3 units. 3 units due south. B bar is equals to 4 units. 4 units due 30 degrees north of east. Question है find first one A bar minus B bar और second one है B bar minus A bar. ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है. We need to find out this one. A bar is 3 units, B bar is 4 units. पहले इसका मैग्नीट्यूड बताओ बेटा. मैग्नीट्यूड ऑफ योर A bar माइनस ऑफ योर B bar कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ योर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इंटू कॉस थीटा. थीटा कौन बताएगा? कौन होगा आंसर? डायरेक्शंस देख लो इसके. A bar is, this is east, this is west, this is north, and this is your south. A bar is towards the south, that means down. 120. A bar. B bar is 4 units 120. north of east. यानी यहाँ पर कहीं पर आएगा. 120. तो ये जो एंगल आ रही है 30 डिग्रीज, क्योंकि ईस्ट पे बैठ के नॉर्थ को जाना है 30 डिग्रीज. दिस एंगल इज नथिंग बट 90. यानी थीटा हो गया 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज. एंगल निकालने आया सभी को. दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 30 डिग्रीज मतलब डायरेक्टली 30 डिग्रीज मत ले लेना प्रॉब्लम में. समझ में आया सभी को? ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस ये हो गया मेरे पास 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 120 कितना बेटा? माइनस 1/2. तो ये हो गया कितना देखो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 4 स्क्वायर इज 16 माइनस ए 2 और 2 चले जाएगा तो माइनस माइनस ए प्लस बन जाएगा 3 4 से 12. तो बना कितना देखो कितना बन रहा? √37. √37 यूनिट्स. ये इसका आंसर हो. ठीक है ना? अब सी बार मेक्स एन एंगल विद व्हाट बेटा? डायरेक्शन कहां पर आएगा? इफ resultant mod A bar plus minus B bar को मैं लिख रहा हूं रिजल्टेंट C bar. C bar makes an angle alpha with A bar. देन इसके एंगल कैसे निकालोगे बेटा? tan alpha is equals to फॉर्मूला क्या था? tan alpha is equals to b into sin theta divided by a minus b into your cos theta. तो ये हो गया a की वैल्यू कितनी है 4 into cos 120 sin 120 कितना बेटा? √3/2. वैल्यू लिख देता हूँ फिर बाद में परेशान हो जाएगी. So this one is sin 120 divided by a की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 minus 4 into cos 120. अब इसकी वैल्यूज डाल दो बेसिकली जल्दी. So this one is your 4 cos 120 is √3/2 divided by this one will become for me 3 minus 4 into minus 1/2. तो ये बना कितना मेरे पास देखो 2 1s are 2 2s are. So this one is 2 into √3 divided by this one is nothing but 3 2 1s are 2 2s are. So minus minus this will become for me plus this is nothing but of your 2. तो ये हो गया कितना मेरे पास बेटा 2√3 divided by your 5. ठीक है ना? So alpha will be equal to how much right now? Alpha is equals to tan inverse of 2√3 divided by 5. ये हो गया इसका आंसर. आ गया सभी को? देख लो एक बार जल्दी से, कोई डाउट रहता पूछ लो. इसका डायरेक्शन निकालना है अभी मुझे. C का वैल्यू निकालना है. मेरे पास A बार आ गया, मेरे पास यहाँ पर ये B बार भी आ गया. रिजल्टेंट निकालना है C बार. रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालना, ये बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो बेसिकली. ये हो गया सभी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया. चलो हम लोग अब इसका डायरेक्शन निकालते हैं. हम लोग को निकालना क्या था? A बार माइनस B बार.
यानी ए बार कौन सी डायरेक्शन में था, साउथ, यानी नीचे ही, इसको एज इट इज रख रहा हूं मैं, छेड़ नहीं रहा हूं, ए बार इस तरह से ही है बेसिकली। उसके तरह बी बार कहां पर था, बी बार इज राइट नाउ व्हाट, नॉर्थ ऑफ योर ईस्ट, यानी उसको शिफ्ट कर लेके यहां पर आ रहा हूं, तो ये हो गया बी बार, ठीक है ना, ये हो गया बी बार। अब मुझे चाहिए क्या था, ए बार एंड माइनस बी बार के बीच में चाहिए था, तो इसको क्या मैं एक्सटेंड कर लूं पीछे, तो ये हो गया माइनस ऑफ बी बार। अब रिजल्टेंट कहां पर आएगा, फर्स्ट वेक्टर ए बार, सेकंड वेक्टर दिस वन, क्लोजिंग वेक्टर शुड बी इन द ऑपोजिट ऑर्डर, यानी ये से इसको मिला दो, तो ये हो गया सी बार, दिस इज मेकिंग एन एंगल राइट नाउ हियर, ये अल्फा। डायग्राम देखो जल्दी से, समझ में आया, समझ में आया, Yes, sir. ए बार और बी बार के बीच में एंगल कितनी है, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज, समझ में आया, Yes, sir. फिर एक बार बताओ, देखो बेटा फर्स्ट वेक्टर जो था कौन सी डायरेक्शन में था, साउथ के डायरेक्शन में था, मैंने साउथ के डायरेक्शन में रखा, मैंने बी वेक्टर को शिफ्ट करके हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर को लगा दिया। मैं कौन से मेथड से कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल मेथड से, हेड एंड टेल मेथड, ट्रायंगल मेथड। सो मैंने टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर को लेके आके हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर को लगा दिया, तो मेरे पास प्लस ए बार है, मेरे पास प्लस बी बार है, लेकिन मुझे एंगल चाहिए बिटवीन ए बार एंड माइनस बी बार, तो बी बार को मैंने माइनस कर दिया, हुआ, अरे क्या हुआ, हाँ हो गया। ए बार एंड माइनस बी बार, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, जो व्हाइट लाइट से मैंने ड्रॉ किया हुआ दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर सी बार, ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दैट विल गिव मी द आंसर। क्लियर है, Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखो बी बार माइनस ए बार, सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं अभी राइट नाउ। सेकंड वन में क्या पूछ रहा था, बी बार माइनस ऑफ Minus a bar. इज इक्वल्स टू, अपने पास दे रहा है सी बार, चलो बी बार माइनस ए बार निकालते हैं जल्दी से, मैग्नीट्यूड ऑफ योर बी बार माइनस ऑफ योर ए बार इज इक्वल्स टू, बी बार माइनस ऑफ योर ए बार का रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ योर बी स्क्वायर प्लस A square माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ योर 120 डिग्रीज अगेन, तो ये फिर से कितना आ जाएगा, रूट 37 ही हो जाएगा, बिकॉज वैल्यू चेंज नहीं हो रहे, तो मैं आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूँ रूट 37। इफ सी बार इज मेकिंग एन एंगल, if C bar is making an angle beta with B bar, तो जब क्या होगा, tan बीटा की वैल्यू निकालो, tan बीटा इज इक्वल्स टू a into sin theta divided by b minus a into your cos theta, a की वैल्यू कितनी है 3 into sin 120 divided by 4 minus 3 into cos 120, तो इसकी वैल्यूज डालो 3 into root 3 by 2 divided by over दिस वन हो मेरे पास यहाँ पर, ये हो गया 4 minus 3 minus of your 1 by 2, यानी ये बन गया मेरे पास 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये हो गया मेरे पास 3 बाई 2, ठीक है ना, तो ये हो गया 4 प्लस 3 बाई 2 कितना आ रहा है देखो, 3 root 3 by 11 3 रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 बाई 2 कितना आ रहा है 11 बाई 2, तो ये चले गया, तो बचा कितना 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 11, यानी बीटा जो आ रहा है मेरे से पास, बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 11, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसका डायरेक्शन निकालना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे को, सो बी बार माइनस ऑफ योर ए बार निकला सभी को, b bar minus of your a bar is equals to mod of your b bar minus a bar is equals to under root of b square plus a square minus 2ab into your cos theta, so root 37 aa gaya, c bar is making an angle beta with your b bar, then I also calculated the value of a tan beta, so from that one I got the answer as beta is equals to tan inverse of your 3 root 3 divided by your 11.
Now, chalo, tell me the directions. How do you write the direction? It is b bar minus a bar. B bar minus a bar. So what I'll do is I'll keep the first vector as it is. First vector is in which direction, beta? South direction. तो ये हो गया a bar, isn't it? Then I'll shift the vector b bar because I need b bar minus a bar, but not a bar minus b bar, isn't it? So ये हो गया, मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा basically. See here, beta. So ये हो गया मेरे पास a bar in the downward direction. और ए वेक्टर को जो है ना, बी वेक्टर को मैं पीछे से स्किप कर रहा हूं, तो यहां पर हो गया ये बी बार. तो बी बार माइनस ए बार क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस, ए का ऑपोजिट कर लो, तो ये हो गया माइनस ऑफ योर ए बार. तो देखो हेड एंड टेल मिल रहे हैं. हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर क्या है यहाँ पर, बी बार. सेकंड वेक्टर क्या है, बिकॉज हम लोग बी बार माइनस ए बार कर रहे हैं ना बेटा, माइनस ए बार. माइनस ए बार. तो फर्स्ट वेक्टर जो है ना मेरे पास, फर्स्ट वेक्टर जो है बी बार है, सेकंड वेक्टर माइनस ए बार है. तो ए को मैंने माइनस कर लिया, तो हेड एंड टेल के मेथड से सेकंड वेक्टर जो है ना उसको पीछे सरकाया. एक्चुअली फर्स्ट वेक्टर कहां था मेरे पास, यहां पर था, ये बी वेक्टर था ना ऐसा. तो बी वेक्टर को मैंने लेके पीछे रख दिया, तो यहां पर आ गया. समझ में आया ना वो? यस सर. ये बी बार आ गया और माइनस ऑफ ए बार आ गया. So दो vectors are in the same order right now. Closing side of the triangle will give me the answer. Closing side of the triangle मतलब कहाँ पर, ये in opposite direction. तो ये हो गया सी बार. इन दोनों के बीच में एंगल हो गए मेरे पास बीटा. ठीक है ना? तो ए बार, बी बार और ए बार के बीच में जो एंगल आ रही है, that angle is how much for me, or 120 degrees. डायग्राम समझ में आया? Yes, sir. डायग्राम फिर एक बार बतलाऊं. बी बार को एज इट इज रखना है बेटा, ए बार को माइनस करना है. अगर ये बी बार है ना बेटा, तो बी बार को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सामने भी जा सकता हूँ, और बी बार को ऐसे पीछे भी आ सकता हूँ. तो मैंने बी बार को थोड़ा पीछे सरका लिया, जो ओरिजिनल डायरेक्शन में था मेरे पास. ओरिजिनल डायरेक्शन में कहां पर था, देखो वेक्टर बी बार यहाँ पर, ओरिजिनल में बी बार यहाँ पर था मेरे पास. तो मैंने इसको क्या करा, पीछे सरका लिया, तो जो हेड है ना ये ओरिजिन के पास आ गया. ठीक है ना, ऐसा यहां पर ऐसे सरकाया. समझ में आया? ऐसे लिख सकता हूँ ना बी बार. ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, चलो. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया मेरे पास इसका डायरेक्शन. तो सबट्रैक्शन समझ में आया सभी को? सबट्रैक्शन समझ में आया? Yes, sir. थोड़े जल्दी से स्पेशल केसेस कर लेते हैं. अभी आप लोग को बोलना है जल्दी जल्दी. फर्स्ट वन वाला, अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में यानी थीटा 90 0 डिग्री से, तो बोलो क्या हो जाएगा, ए बार माइनस बी बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस 0. कॉस 0 कितना, 1. 1 यानी ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. यानी ये बन गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर. यानी ये बन गया मेरे पास कितना, a minus b. b. So this will be equal to your a minus of your b. इसका मैग्नीट्यूड. ठीक है ना? यानी दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर सी बार. यानी एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है a बार, another vector is also in the same direction. The resultant c bar will also be in the same direction, isn't it? So a बार ये डायरेक्शन में है, तो b का ऑपोजिट क्या आ जाएगा बेटा, b का ऑपोजिट यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ये हो गया माइनस ऑफ b बार. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं. अगर थीटा 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो c बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ योर a बार माइनस ऑफ योर b बार इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस 90. कॉस 90 कितना आ रहा था, 0. कितना, अंडर रूट ऑफ योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर.
यानी सी बार हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर ये वेक्टर मेरे पास ए बार है और ये वेक्टर मेरे पास बी बार है, मुझे चाहिए एंगल बिटवीन ए बार एंड माइनस बी बार, तो इसका ये रिवर्स कर लेना है, तो ये हो गया माइनस ऑफ बी बार, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा स्टैंडिंग वेक्टर में ये हो जाएगा मेरे पास सी बार, और ये जो एंगल बनाएगा ये हो जाएगी इसकी एंगल, और इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगी राइट नाउ दिस एंगल इज नथिंग बट ऑफ योर 90 डिग्रीज। तो एंगल क्या हो जाएगी बता सकता है कोई? tan अल्फा इज इक्वल्स टू d बाई ये आ जाएगा, और अल्फा इज इक्वल्स टू योर tan इनवर्स ऑफ b बाई ये। ओके Yes, sir. ठीक है। थर्ड वन देख लो, when two vectors are in opposite direction बेटा, यानी when two vectors are in opposite direction, two vectors are in opposite direction, yani theta will be equal to how much? 180 degrees. That means mod of a bar minus mod of b bar is equals to under root of your a square plus b square minus 2ab into cos of 180. cos 180 कितना होगा? -1 -1, तो ये बन गया मेरे पास a square plus b square plus 2ab into your cos theta. cos 180 is nothing but -1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2ab। ठीक है ना? सो दिस इज योर a bar minus b bar, यानी दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? अंडर रूट ऑफ योर a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया मेरे पास a ये plus b हो गया a प्लस बी, यानी मैग्नीट्यूड इसका जो आ रहा c बार इज इक्वल्स टू a प्लस बी। वेक्टोरियल लिखना है तो ये हो गया a बार, और b वेक्टर जो था बेसिकली माइनस ऑफ योर b बार, इस तरह से बोथ ऑफ देम आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो c वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फर्स्ट वेक्टर। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. जी sir. तो ये हो गए थे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हम लोग क्या बात कर रहे थे? थीटा इज 0 डिग्रीज ले लिया तो कितना आया? a माइनस बी आया। थीटा 90 डिग्रीज लिए तो कितना आया मेरे पास? c बार इज इक्वल्स टू योर अंडर रूट ऑफ योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज ले लिए तो कितना आया? a प्लस बी, यानी मैक्सिमा मिनिमा दो आए। देखो a प्लस बी मैक्सिमा है और a माइनस बी मिनिमा है कि नहीं? सो रहे हैं सभी लोग? यस सर। सो रहे बोलते एस आर का दिला। सुन रहे बोल के यस सर बोला सर। Next one. Maximum and minimum values of the resultant. रिजल्टेंट के मैक्सिमा कब हो सकता है, मिनिमा कब हो सकता है? बताओ जल्दी से। ए प्लस बी आया तो मैक्सिमा होगा ना बेटा? 180 degrees ए माइनस बी आया तो मिनिमा Minimum. 0 0 degrees डिग्रीज। 0 डिग्रीज। वेरी गुड। तो मैं वो डायरेक्टली लिख दूं ना पॉइंट, फिर मैं पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मुझे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर थीटा 0 डिग्रीज सर ये है। आप कभी बोले थे ना स्पेशल केसेस? हाँ तो कल भी बोले थे, लेकिन वो एडिशन के लिए बोले थे, ये सबट्रैक्शन के लिए। थीटा 0 डिग्री से तो मैक्सिमा है, अगर थीटा 180 डिग्री से राइट नाउ तो ये हो गया मेरे पास मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी है? मॉड ऑफ योर a माइनस ऑफ योर b। ठीक है ना? sir 180 maximum हाँ 180। हाँ ये हम लोग सर एडिशन, ऑपोजिट लिखे सर आप। नहीं ये एडिशन के लिए बात कर रहे हैं। Sir, theta के sign number c बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार का कंडीशन। ठीक है? ओके सर। कल के कंडीशन में बेटा मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। ठीक है? चलो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कैन द रिजल्टेंट of two vectors 8 units and 4 units be equal to, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2 units
सेकंड ऑप्शन दे रखा है 4 यूनिट्स, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 10 यूनिट्स, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 12 यूनिट्स और एक ऑप्शन दे रखा है 16 यूनिट्स। इसका बताओ आंसर क्या हो सकता है? अच्छी तरह से पढ़ो। इन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या क्या वेक्टर्स है मेरे पास? a बार इज इक्वल्स टू मान के चलो 8 है और b बार मान के चलो 4 यूनिट से। 4 इसका मैक्सिमा Option कितना आ B. जाएगा? a प्लस b 12 यानी कितना हो जाएगा? 12 units, 4 units. यूनिट्स होगा, ये हो गया c मैक्स। और इसका मिनिमा कितना आएगा? 4 a units. माइनस 4 b units यानी 4 यूनिट्स। यानी आपका आंसर जो होगा इट शुड लाई बिटवीन 4 एंड 12। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Answer should be in between 4 and 12 होता है ना। मैक्सिमा 12 जा रहा है, मिनिमा कितना जा रहा है? 4। यानी आपका आंसर 4 और 12 के बीच में ही हो सकता है कि नहीं? 10. 10 units. ऑप्शंस हो सकते हैं, 10 देखो units कौन से यूनिट हो सकते हैं? ऑप्शन सी सर, Option C. लॉक कर दीजिए। बी नहीं हो सकता है क्या? B, C, D, C. बी भी हो सकता है, तो बी या सी हो सकता है, D. सर 12 बिटवीन भी हो सकता है। क्या 16 होगा? No, sir. क्या 2 होगा? No, sir. तो आंसरिंग अगर रखा जाए तो क्या क्या आंसर हो गया? B, 4 C. यूनिट्स हो सकता है, 10 यूनिट्स भी हो सकता है, 12 भी, क्योंकि मिनिमा 12 है, मैक्सिमा 12 है, सॉरी मिनिमा 4 है, मैक्सिमा 12 है और 4 एंड 12 के बीच में 10 यूनिट भी लाई कर रहा है, तो 10 भी हो सकता है आंसर। लेकिन 60 तो कभी नहीं होगा, 2 भी कभी नहीं होगा, क्योंकि मिनिमा और मैक्सिमा खुद ही 4 एंड 12 है। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है ना? मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चंस कर लोगे ना अभी? Yes, sir. yes sir मैं और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर बताओ। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, the maximum and minimum values of the resultant of two vectors are 10 units and 2 units. Then calculate the numerical values of the individual vectors. बात समझ में आ रही है? उसको उल्टा दे रहा हूं मैंने, क्वेश्चन ऊपर का जो उल्टा दे रहा हूं। यानी मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू आपको दे रखा है प्रॉब्लम में। He has given me the maxima and minima value. C max कितना दिया? C max is equals to A plus B. That is given as of your 10 units. C minima is equals to A minus B. A minus That is B. given as of your how much? 2 units. 6, 4. Equation 1 or A equation is 2? equal to A is equal to 6, B is equal to 4. Very good. So we'll get solving. A is equals to 6. Solve करना है, आ जाएगा. B is equals to 4. B is equal to 4 ठीक है? Yes, sir. समझ में आया? yes sir थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है शायद। हाँ बेटा, आसिफ सर, मैं आसिफ सर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। ये कॉमेडी है नहीं? एक मूवी है कार्तिक बोल के, आसिफ सर ही बात कर रहे हैं। कॉलिंग आसिफ बोले सर का एक मूवी भी है उसका, किसका मालूम है? क्या नाम है हीरो का? हो गया, भूल गया। तेलुगु मूवी में कार्तिक बोल के रहता। हाँ तेलुगु मूवी में, तेलुगु में भी है, हिंदी में मुझे मालूम है, लेकिन तेलुगु में तो आइडिया नहीं है। हाँ बोलो सर। अच्छा ये अपना अभी आपको 5:30 to 6:30 आपका क्लास है ना? हाँ। वो ये क्लास के बाद ले सकते क्या आप? आपका 5:30 से लेके 6:30 का? नहीं सर, नहीं होता, नहीं होता क्योंकि कॉलेज का क्लास है, फिर मेरे को नारायण का स्टडी वर्स है। अच्छा नो कुछ भी नहीं, तबीयत थोड़ा खराब है, आज नहीं आए, आके चले गए। अली सर है? हाँ। तो तुम घर से कर लो ना, क्या करने क्या है? मैंने घर से नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बोला तो
आप 5:30 के प्लेस में आप कर लेते, आप 5:30 को फ्री हुआ तो ना बोल के वो हिसाब से बोल रहा था। नहीं, वो क्या है, मेरे को ऑलरेडी बीचों में क्लास है, नहीं तो मैं रख लेता था। या श्योर देन कैरी ऑन सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो। थैंक यू। हो गया बेटा सभी को, ये क्लियर है? जी सर। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ओके सर। ये क्वेश्चन लिखो। द resultant of two forces, one double the other in magnitude, is perpendicular to the smaller of the two forces. First stop. Find the angle between the forces. क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो पहले। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, यानी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है ना वो कितना है? One double the other. One double the other in magnitude is perpendicular to the smaller, यानी रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस जो है ना परपेंडिकुलर है टू द स्मॉलर फोर्स। मान के चलो एक वेक्टर मैं ले रहा हूं P, अगर ये P वैल्यू x है और अदर वेक्टर ले रहा हूं Q, इसका क्या है वैल्यू x। 2x. Now what is telling is resultant R is perpendicular to smaller मतलब क्या? x P bar। and Q. ठीक है ना बेटा, वही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। यस सर। तो ये हो गया मेरे पास एक वेक्टर, मान के चलो क्या x, P and Q ना perpendicular to x कैसा हुआ? P and Q, हाँ ऐसा, ओके। R is perpendicular बेटा। रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना, जो आ रहा अपने को, 180 मैं वो लिख रहा हूँ Smaller रिजल्टेंट। forces. या तो ये फाइनल रिजल्टेंट है R बार। ये R बार जो है ना फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी कि सेकंड वेक्टर जो है ये इसके ऊपर होना चाहिए। अभी ये होना चाहिए 2x। बात समझ में आई? Yes, sir. तो दोनों के Yes, बीच में sir. एंगल कितनी है? 90 plus के बीच theta. में जो एंगल है 90 that is plus nothing but theta. equal to how much? Some theta. वो थीटा निकालना है अपने को। is asking the question, find the angle between the two forces, isn't it? ये मान के चलो F1 बार ले रहा हूं मैं, और ये मान के चलो F2 बार, 4 से F को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। F1 is P is equals to x, F2 is nothing but 2x। ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? Yes sir. दो वेक्टर्स के जो रिजल्टेंट है, दैट रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स बोला, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो मुझे क्या अल्फा की वैल्यू मालूम है? अल्फा कितना है? 90 डिग्री। Yes, sir. क्योंकि रिजल्टेंट विल ऑलवेज मेक एन एंगल विद द फर्स्ट वेक्टर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी 90 होगी? 90 perpendicular. यार थीटा वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला मुझे पता है ना बेटा, tan alpha is equals to q into sin theta divided by your p plus q into your cos theta। अल्फा कितनी है? 90। tan 90 is equals to q वैल्यू कितनी है बेटा? q मतलब 2x into 2x. sin theta divided by x plus 2 into your cos theta। cos theta. ठीक है ना? tan 90 मतलब कितना? Infinity. Infinity undefined। Infinity मतलब anything divided by 0। Yes sir. So that is equals to 2x into your sin theta divided by x plus 2x into your cos theta। So therefore I can write here x plus 2x into cos theta is equals to how much for me? 0 से equate कर सकता हूँ। Yes sir. तो cos theta is how much X for me? common. Cos theta is equals to Minus 1/2, 120 degrees. minus 1/2, यानी थीटा कितना हुआ? 120 degrees. 120 degrees is your answer। बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है सभी को? यस नींद आ रही देखो, जमाई लेते जी हुए सर। हाँ, Abdul Mukhid to everyone, what? Excuse me sir,
रजा क्या कुछ जबरदस्त प्रॉब्लम है क्या? चलो क्लियर है सभी को? Yes, sir. जी सर Sir. चलो और एक क्वेश्चन कर ले, Yes, sir. ओके सर 3 मार लेने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, द सम ऑफ द magnitudes of two forces acting at a point is 18 and the magnitude of their resultant is 12. Stop. If the resultant is at 90 degrees with the force of smaller magnitude, ऊपर वाला मेथड के तो हिसाब से ये मैग्नीट्यूड magnitudes of forces. पहले से ही उसे तड़पाना जालिमा क्या पता चल रहे हैं? चलो उसे इश्क में बहक सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, मुझे पता नहीं टू फोर्सेस तो मैं मान के चल रहा हूँ P bar plus Q bar is equal to अगर 18. 18 हो गया, ठीक है ना, P plus Q is equal to 18, this is my first R. one. और जो रिजल्टेंट है वो कितना R बना? is equal to अल्फा वैल्यू इज 90 12. and 90 is nothing but how much for me? 1/0, 1/0. isn't it? तो अपने पास फॉर्मूला है tan alpha is equals to Q into divided by over P plus Q into cos theta. Question देखो क्या बोला? The sum of the magnitude of the two forces acting at a point is 18 and the magnitude of the resultant is कितना मेरे पास? 12. R value दे रखा है कितना? Capital R is equals to 12. If the resultant is making an angle of 90 degrees with the force of smaller, यानी alpha value कितनी है? 90 degrees. Alpha value of 90 degrees है तो tan 90 is equal to 1/2. Then what is asking is what are the magnitudes of your forces? ठीक है ना? तो tan alpha कितना है? 90. So tan 90 will be equal to 1/0. That is equals to Q into sin theta divided by P plus Q into your cos theta. यानी P plus Q into your cos theta must be equal to 0. होता है ना बेटा? यानी Q cos theta will be equal to how much बेटा? Minus P. minus P. Okay, this is I am taking it as Yes, sir. रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? R square is equals to P square plus Q square plus 2PQ into cos theta. क्योंकि R की वैल्यू मुझे दे रखा है प्रॉब्लम में, तो ये हो गया मेरे पास 12 स्क्वायर. P की वैल्यू कितनी है मेरे पास? P की वैल्यू नहीं दिया तो आई एम कीपिंग द P स्क्वायर एज इट इज प्लस Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या मैं? फर्स्ट इक्वेशन से Q की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 18 minus P. सो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 minus P. लिख सकता हूँ? Sir. यस सर यहाँ पर ही लिख रहा हूँ मैं. Q की वैल्यू हो गई मेरे पास 18 माइनस ऑफ योर P होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस, तो ये हो गया मेरे पास 2P Q. देखो Q cos थीटा की वैल्यू कितनी है? -P. माइनस P हो गया. Yes, sir. 12 into 12 144. is equals to P square plus this is in the form of A minus B whole square. यानी ये हो गया 18 into 18, 8 8 is 64, 4 2 32, यानी 324 plus this will become P square minus 36 into P minus 2 minus P into Minus 2. become P square. तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है देखो? 2P square. ये 2P square ये P square कैंसिल हो जाता है. ले लो
कितना आ रहा है देखो, -5. A 5 कितना 5 p वैल्यू बेटा, तो P value 5. स्क्वायर 2p स्क्वायर है ना बेटा, ये 2p स्क्वायर AP स्क्वायर कट जाएगा, सो दिस वन इज 144 इज इक्वल्स टू 324 माइनस 36p, तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो, 324 माइनस 144 कितना होगा, माइनस माइनस कैसे भी कट जाएगा, यानी 180 इज इक्वल्स टू 180, यानी p इज इक्वल्स टू 5. 180 डिवाइडेड बाय 36 5 दैट इज नथिंग बट 5 यूनिट्स, ठीक है ना। सो p की वैल्यू कितनी आ गई, p इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, अगर p 5 यूनिट्स है तो क्या q निकाल सकते हो, 13 unit. 18 minus p था, so it is 18 minus 5, that will be equal to how much for me, 13 units. So what is the answer right now for me, p हो गया मेरे पास, p बार फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए कितनी, 5 यूनिट्स, और q बार की वैल्यू होनी चाहिए कितनी, 13 यूनिट्स, so this is your answer for, क्लियर है, Yes sir. Yes, sir. समझ में आ गया सभी को, Yes, sir. ठीक है ना, Yes, sir. अब ऐसे वाले क्वेश्चंस कर सकोगे ना आराम से, Yes, sir. Sir. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद है बेटा आप लोग को, एक बार लिखा देता हूँ, देख लो एक बार जल्दी से, ये ज्यादा यूज होते हैं अभी अपने को यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस of multiple angles. Trigonometric functions of your multiple angles. ये फॉर्मूले याद होंगे, लास्ट टाइम सर ने लिखवाया होगा, देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 sin थीटा into your cos थीटा, याद है, याद है, Yes, sir. sin थीटा Yes, का yes. लिखोगे फिर, sin थीटा is equals to 2 into sin थीटा by 2 into your cos थीटा by 2, लिख सकोगे, Yes. सेकेंड वन cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos square theta minus 1, yeah, that is also equal to 1 minus of your 2 Cos square theta. sin square theta, याद है, cos theta is equal to कितना हो जाएगा, 2 cos square theta by 2 minus 1 भी लिख सकते हैं, yeah, that is also equal to 1 minus 2 into your sin square theta by 2, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस बेटा, अभी अपने को ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होते रहते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा कहीं पर आ गया तो क्या लिखोगे, 2 into sin square थीटा लिखोगे, उसी तरह से अगर 1 प्लस cos 2 थीटा आ गया तो ये कितना लिखोगे, 2 into your cos square थीटा लिखोगे, Yes, sir. ठीक है ना, ये कंपलसरी याद रखना है, स्पेशली द फर्स्ट वन sin थीटा इज इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2, ठीक है, क्लियर है, Yes, sir. चलो ये तो आप लोग स्कूल डेज में ही पढ़े होंगे, याद होगा, जल्दी जल्दी से बता दो पहले, रफली लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, अगर एक्यूट एंगल लेसर देन 90 डिग्री से, फॉर एनी एक्यूट एंगल बेटा, फॉर एनी एक्यूट एंगल मतलब क्या, लेसर देन 90 डिग्रीज, अगर थीटा कोई फंक्शन है मान के चलो, यू नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा secant secant स्क्वायर, square.
ठीक है ना। उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी cosecant, स्क्वायर थीटा। इसी के अंदर हम लोग ये भी याद रखना है साइन माइनस टी होगा तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। उसी तरह से कॉस ऑफ माइनस थीटा है तो कितना हो cos जाएगा theta, cos theta, थर्ड वन। अगर tan माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा tan minus tan theta. minus tan theta. ठीक है ना, Yes sir. ठीक है। Yes sir. आई होप दिस आर द कंडीशंस यू नीड टू रिमेंबर। ये पूरा रफली मैंने आप लोगों को करवा दिया है एक्चुअली, तो ये ऑलरेडी थोड़ा वो सर ने भी लिखवाया था होगा मेरे ख्याल से। लेसर देन 90 डिग्रीज हो गए तो ये रिलेशंस होंगे। अगर जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट वन बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, उसको याद रख लो। cos 2 थीटा इज आल्सो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ पूरे एमपीसी के बच्चों के लिए है बेसिकली, लेकिन बाईपीसी बच्चे डायरेक्टली रिजल्ट याद रख ले, या एमपीसी बच्चे फिलहाल भी आप लोग रिजल्ट्स याद रख लो, बिकॉज हम लोग का डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है फिजिक्स में इसका यूज करने का। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Now, Yes sir. remaining part I'll try to do it in the tomorrow section of the class. मैं YouTube पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, देख रहे हैं ना आप लोग? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, चलो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा एक 10-15 मिनट के अंदर, वो आप लोग गो थ्रू कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Okay sir. Bye. Thank you sir. Thank you, sir. बाय Thank you, sir. Thank you, sir. बाय, थैंक यू।